Good morning, students. Today's our topic is MS Access. Today we yeah, DBMS from Microsoft that combines the relational Microsoft Jet database engine with a graphical user interface and software development tools. It is a member of the Microsoft Office suite of applications included in the professional and higher editions or sold separately. In हिंदी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है जो अंग्रेजी में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली है जिसकी रचना और वितरण माइक्रोसॉफ्ट ने अपने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और मैक ओएस एक्स के लिए किया है। यह अनुप्रयोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। फीचर्स हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं इसमें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हैज़ बीन अराउंड फॉर ए लॉन्ग टाइम बट सम पीपल आर स्टिल uncertain as to what the program does and how it can benefit their day to day operations. Access is a relational database and it has a similar look and feel to other Microsoft products. It's made up of major components which we will discuss today. Even even though there is plenty to read about MS Access, the only way to know for sure how you like the program it is by trying it out for yourself. Let us explore the six major components to Microsoft Access so that you can better understand how the database works. First is the component at tables. Tables are responsible for storing information within the database. You will notice that the table in Access looks similar to the ones in Excel. They contain columns or rows. Each column has a name at the top and each row has a number. If you don't set up the table correctly, the database might give you the wrong result. Improper table can also lead to slow or unpredictable performance so take your time. Also lead to slow or unpredictable performance so take your time setting up the tables appropriately. Second component है relationship. Relationship are essentially the connection or bonds. Relationships are essentially the connections or bonds that are formed between tables. Table can be related in one of three ways: one to one, one to many, and many to many. Third component is queries. Queries are requests to inform request for information. Query can sort, calculate filters, update data, and more based on the result you are looking for. Forms. According to Access, a form is a database. According to Access, a form is a database object that can be used to create a user interface for a database applications. A bound form is linked to a data source. Various
an unbound form does not. हिंदी में टेबल एक ऑब्जेक्ट है जिसका उपयोग डाटा को परिभाषित और स्टोर करने के लिए किया जाता है। जब आप एक नई टेबल बनाते हैं तो MS Access 2013 आपको उन फील्ड को परिभाषित करने के लिए कहता है जिन्हें कॉलम हेडिंग्स भी कहा जाता है। अलग प्रकार के रिकॉर्ड्स के कलेक्शन को टेबल कहा जाता है। अच्छी टेबल बनाना अच्छी डाटाबेस डिजाइन की ओर जाता है। टेबल में पंक्तियां और कॉलम होते हैं। कॉलम को फील्ड कहा जाता है और पंक्तियों को रिकॉर्ड कहा जाता है। रिलेशनल डाटाबेस लिंक किए गए डाटा के साथ कई टेबलों के रिकॉर्ड स्टोर करते हैं। प्रत्येक फील्ड में यूनिक नेम और डाटा टाइप होना चाहिए। टेबल में फील्ड या कॉलम होते हैं जो विभिन्न प्रकार के डाटा जैसे कि नाम या पता, रिकॉर्ड जो विषय किसी भी विशेष उदाहरण के बारे में सारी जानकारी एकत्र करते हैं, जैसे किसी ग्राहक और कर्मचारी इत्यादि के बारे में सारी जानकारी एकत्र करते हैं। टेबल बारीकी से संबंधित जानकारी संग्रहित करने के लिए अच्छे हैं, जैसे कि आप ऊपर चार्ट में देख रहे हैं। आइए मान लें कि आप बेकरी के मालिक हैं और डाटाबेस है जिसमें ग्राहकों के नाम और जानकारी के साथ एक टेबल शामिल है, जैसे कि उसका फ़ोन नंबर, घर का पता, ईमेल पता। इसलिए आप इन्हें टेबल में शामिल करेंगे, एक ही टेबल में शामिल करेंगे। यदि आप टेबल में बाद में और रिकॉर्ड जोड़ना चाहते हैं तो आप आसानी से उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। आप एक प्राइमरी की को या अधिक फील्ड को परिभाषित करने के लिए कर सकते हैं, जिसमें प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए एक अद्वितीय मान यूनिक वैल्यू है और प्रत्येक डाटा पर एक अधिक इंडेक्स आपके डाटा की ओर को और तेजी से पुनर्प्राप्त करने में सहायता के लिए कर सकते हैं। ध्यान दें, भले ही प्रत्येक रिकॉर्ड में जानकारी फील्ड में व्यवस्थित की जाती है, यह उस रिकॉर्ड में अन्य जानकारी से संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति के बाईं ओर संख्या देखें, यह आईडी नंबर है और प्रत्येक रिकॉर्ड की पहचान कराता है। रिकॉर्ड के लिए आईडी नंबर उस पंक्ति पर निहित जानकारी के प्रत्येक टुकड़े संदर्भित करता है। क्वेरी, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में क्वेरी को समझना चाहें तो क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चन और डाउट्स। अगर आपको किसी चीज़ के से संबंधित डाउट है या जानकारी की ज़रूरत है तो आप कंसर्न डिपार्टमेंट या पर्सन से जो प्रश्न पूछते हैं वो क्वेरी कहलाता है। इस प्रकार किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए पूछा गया प्रश्न क्वेरी कहलाता है। एक डाटाबेस के अंदर एक से अधिक टेबल होती है। इन टेबल्स के मध्य रिलेशनशिप क्रिएट करके सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। टेबल के अंदर कुछ सूचनाएं इस तरह की भी होती हैं जिनकी आवश्यकता हमें बार बार होती है। इसके लिए हमें उस टेबल को बार बार प्रयोग करना होता है। MSSS में किसी टाइप के अंदर से सिलेक्टेड फील्ड की सूचना को हम अलग एक टेबल के रूप में रख सकते हैं तथा जब भी हमें उस सूचना की आवश्यकता होती है हम अलग से टेबल के रूप में रखी गई इस इन्फॉर्मेशन का उपयोग भी कर सकते हैं। क्वेरी वह है जिसे आप अपने डाटाबेस से जानकारी पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं। क्वेरी में पूछे गए प्रश्न का जवाब आपको अपने डाटाबेस के भीतर टेबल से डाटा निकाल कर देता है। क्वेरीज डाटा को ढूंढना आसान बनाता है और क्वेरीज में के आधार पर नई टेबल बनती है। थैंक्स स्टूडेंट्स।